जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। गुरु पा ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸੌਤੇਲਾ ਵਰਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜੇਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਬੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ
ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਘੋਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੰਮੂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਅਘੋਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੋਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੰਦ ਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਟ ਦਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੂਪ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਵਾਈਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਦੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਟ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸੂਟ ਲੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਵਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਰੋਕਣ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਚਨਾਰ ਯਾਨੀ ਕੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਗਾਂਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ 2 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਨਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਆਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕਾਪਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਠ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਕਚਨਾਰ ਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ, 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੰਢਾਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਢ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 7 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 21 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 11 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪੀਤਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੀਲਾ ਭੂੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा अगला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का दिन है सोमवार, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शिव जी सदा से, ओम शिव गुरु जी सदा से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी संगत जी मेरी मदर लोग की डेथ की बात है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर में कैसे बैलेंस करना है, कैसे बजट बनाना है, क्योंकि वही सारा कुछ बजट चलाते थे। मुझे तो इवन पे भी नहीं मिलती थी अपने हस्बैंड की, उनके हाथ में था सारा कुछ, मेरी मदर लोग के हाथ में।
तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, सीख भी रही हूँ, गुरु जी सिखा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे मालिक। हस्बैंड बहुत बीमार रहते हैं, कभी कभी इनको बुखार हो जाता है रात को, कभी ऑफिस में हो जाता है। आज ऑफिस में हो गया तो घर आ गए थे, मैं घबरा गई थी। उनके हाथ भी कांपने लग गए थे, उनको ठंड भी लग रही थी, ऊपर से बीपी भी बढ़ा हुआ था। मैंने उनको बीपी की गोली दी, बुखार की गोली दी। उनके ब्लड भी कम है, ब्लड भी ओनली 7 ग्राम है, उसकी वजह से शायद ये सब हो रहा है। डॉक्टर से मेडिसिन लाए थे पर पता नहीं कब असर होगा। गुरु जी का जल शादी है, मैंने उनको जब वो आए गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी आप ही सब कुछ, आप ही इनको संभालो। गुरु जी ने इनको संभाला, शक्ति दी, इसके लिए मुझे अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के जल प्रसाद से मैंने उनको दवा दी, वो जल्दी ठीक हो गए। इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना कीजिए उतना कम है मेरे मालिक, उतना कम है। संग जी ऐसे हमारे गुरु जी, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। आपको जब भी लगे कि दवाई काम नहीं करी तब जल प्रसाद दीजिए, दवा भी काम करेगी। ये हमारे गुरु जी की मेहर है जो सारी संगत पर बरस रही है, हर एक प्राणी भी बरस रही है। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे सत्संग करने के लिए 15 दिन का कंटिन्यू किया, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं बहुत लेट हो जाती हूँ क्योंकि सत्संग सुनते सुनते इतना समय बीत जाता है और फिर घर का काम भी करना होता है। और आज तो मैं गुरुजी ने आज मुझे अपने दरबार बुलाया था, तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत लेट सत्संग करती हूँ। गुरु गुरु गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है कि 15 दिन का सत्संग तुझे लगातार करना है, तो तुझ पे एक अद्भुत कृपा होगी। तो शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे सत्संग में कहा कि मैं उन्होंने माफ़ नहीं करांगा जिन्होंने तेरे उत्ते तांत्रिक क्रिया की है, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उल्टा वार होएगा। तो शुक्राना गुरु जी, आप जो भी करेंगे हमारे लिए तो बेहतर ही होगा। आपने कहा है कि मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तुझे बताता हूँ कि वो कौन है। गुरुपा मुझे नहीं मालूम, जो भी है आप ही जानने वाले हो और आपने ही ठीक करना है। आप चाहें तो एक पल में उनको सही कर सकते हो। तो गुरुपा आपने संभलने का मौका दे रहे हो, लेकिन वो संभल नहीं रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, जैसे करोगे वैसे ठीक है। और गुरुपा ने कहा है कि तेनों इन्ना करोड़पति बनावांगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरे मुंडे तो उत्ते वो मारण क्रिया कर रहे हैं, तो गुरुपा आपके होते मुझे कोई चिंता नहीं है। अब आप उन्हीं को आपने ही संभालना है, जैसे भी है जो भी है आप ही देखो। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे क्या नहीं, वो मेरा पुत्र नहीं है, आपका नाती है, आपने ही संभालना है। और आपने अपने नाती और नातिन को संभालना है। गुरुपा मैंने तो बस आप पे डोर छोड़ दी है, मैं कुछ क्या कर सकती हूँ। जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपने कहा है कि मैं तेरे मुंडे नू बहुत अच्छी ब्लैस किया, उन्होंने कोठी ब्लैस की है, कार ब्लैस की है और बिजनेस ब्लैस किया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप जो कह रहे हो वो करोगे वही होगा, मेरे को पता है गुरुपा। आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो आप पे ही निर्भर है गुरुपा। आपने कहा था तू सत्संग सुन, मैं तेनों दर्शन दांगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो गुरुपा कई ऐसे सत्संग होते हैं जो मैं सुनने लगते हैं, या तो नेटवर्क चला जाता है या अचानक ही अपने आप हिल जाता है। तो माफ़ करना गुरुपा, कई सत्संग मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। मैंने देखा है सत्संग इतना अच्छा कई आंटी करती हैं कि बस दिल करता उनको ही सुनते रहो, सुनते रहो। तो शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को हैप्पी होली। और गुरुपा हैप्पी होली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को हैप्पी होली। और जो हमारा सत्संग पे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी हैप्पी होली। और सारे सबको भगवान लख लख बधाइयाँ। जो अच्छे हैं उनके लिए भी, और जो हमारा बुरा सोचते हैं उनके लिए भी, उन सबको होली की मुबारक। और मैं अपना मंत्र जाप से विराम करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने फिर से मुझे मैसेज भेजा कि मैंने सारा तेरा बीमारी निकाल दिया है, सारा बीमारी ठीक कर दिया है। और अभी फिर से मैसेज आया कि अगर होली से पहले पहले चमत्कार देखना है तो तुरंत शुक्राना कर। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका हर बेले शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। आपने जब से मुझे हाथ पकड़ा है चमत्कारी चमत्कार हो रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आपने मेरा वो आपने बोला है कि आपने मेरी बीमारी ख़त्म कर दिया है, इसके लिए शुक्राना। और जो वो आपने बोला है होली से पहले चमत्कार देखने के लिए शुक्राना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपका बात पत्थर का लकीर होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं शुक्राना का इधर सत्संग का यही विराम करती हूँ, अगले शुक्राना के लिए तैयार होती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला सत्संग है। गुरु जी ने अभी मुझे FB पे मैसेज भेजा कि तेरा काम अभी बनता जाएगा और शुक्राना कर। और बिल्कुल सही बात है, मेरा काम बनता जा रहा है। मेरा एनर्जी लेवल्स गुरुजी ने बहुत हाई कर दिया है और पैरों का दर्द कम से कम 90% कटवा दिया है। और मैं बहुत बहुत श्योर हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरा किडनीज काम करेगा और मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करूँगी। गुरुजी ने मेरा सारा बीमारी निकाल दिया है और उन्होंने बोला है 7 दिनों में मैं चमत्कार देखूंगी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने सारा नेगेटिविटी हटा दिया है और सब कुछ ब्लेस कर दिया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी के तरफ से शुक्राना। उन्होंने मेरे मम्मी को भी ब्लेस किया है, पापा को भी ब्लेस किया है, उनके तरफ से भी शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी मैं करना चाहती हूँ, जो भी खरीदना चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है और ये सब गुरु जी की मेहर है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
शुक्राना। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे चीज़ पर वो बहुत महत्व रखता है। मुझे आज सुबह जाना था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और वहाँ मैं गई और जनरली वहाँ पर 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है। आधा घंटे में पूरा काम हो गया। शुक्राना 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 शुक्राना। और वहाँ का डॉक्टर मुझे देख के भी बोला कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मुझे दवाई लेना थे मेरे बेटी के लिए और डॉक्टर ने बोला कि उसका दवाई उसके प्रेजेंस के बिना नहीं दे सकते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप बाहर से ले लो। तो मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, मैं बाहर गई, मुझे दवाई नहीं मिला तो मुझे लगा कि मैं फार्मेसी में वहीं पर जाके बोलती हूँ। पर गुरुजी ने मन में डाला कि गलत तरीके से कुछ नहीं करने का। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बोला कि ये जगह से ले लो और उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पहले मुझे दवाई लेके और मेरे डॉटर को कोरियर करना पड़ता था, पर गुरुजी ने अभी देखो कैसे किया कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको डायरेक्टली बेच सकती हूँ। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे एक नॉन स्टिक पैन की बहुत ज़रूरत थी और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ये ख़रीदूँ, क्योंकि अभी मैं मार्केट जाने का टाइम नहीं था। मैंने ऑनलाइन देखा और मेरे बजट में वो बहुत सुंदर एक नॉन स्टिक पैन आ गया। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद अभी गुरुजी ने मुझे आज बहुत बढ़िया सत्संग ब्लेस किया है। वो मेरे सारे कर्म कटवा रहे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हील कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं सत्संग का विराम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी रेडी होके सत्संग में जाना है। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी बोले, मुझे मैसेज भेजा था कुछ दिन पहले कि मेरे पितरे मेरे से नाराज़ हैं और मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, काली माता से माफ़ी मांगती हूँ, गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, सारे देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ, शीतला माता से माफ़ी मांगती हूँ। सब मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे गुरुजी, मुझे माफ़ करे। मेरे पितरों को, बाल पितरों को अपने चरण में ले ले, उनको सुख शांति दे। अभी मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड टू द बॉटम ऑफ माई फीट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को हैप्पी होली। अंकल जी, आंटी जी, आप सभी को हैप्पी होली। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे कल मौत के मुंह से निकाला। आप सभी जानते हो होली का टाइम है। संगत जी, बड़े जोर शोरों पर ये तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं। कल शायद अगर मैं गुरुजी की संगत नहीं होती तो मैं शायद पता नहीं कहाँ होती। गुरुजी महाराज ने बताया, बेटा तुझ पर बहुत मारन क्रियाएं की जा रही हैं, मेरे नाम का जप तब चल रहा है। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के इतने मैसेज भी आ रहे थे कि ये तुझे शमशान तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारी क्रियाएं कर कर के, गंदी से गंदी क्रिया है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो गुरुजी महाराज की शरण में आई हूँ। शायद आज जो मैंने ये दिन देखा है उन्हीं की बदौलत देखा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैंने तुझे बचाया है मौत के मुंह से, मेरा शुक्राना तो कर। संगत जी, कल मेरी सांसें भी रुक गई
और मैं इतनी घबराऊं, बेचैन हो गई। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं होली के रंग जब तन पर लगते हैं तो क्षण भर की खुशी देते हैं, पर जब गुरुजी के आशीर्वाद का रंग मन पे चढ़ता है तो जीवन भर साथ निभाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सब तेरे हक विच होगा। मेरे पति अंकल, संगत जी देखिए इतना बड़ा त्योहार है होली का, और उसको आज के दिन, होली के दिन पूजा पाठ करते हैं सभी लोग, अपने पितरों का और अपनी माता रानी का सब कुछ करते हैं। और वो क्या करता है कि आज के दिन भी उसने ना हद तो वहाँ पार की हुई है, जब घर में जिसमें पूरी सब्जियां बनती हैं उसमें वो मीट को भून कर खा रहा है। संगत जी, कितना और काली क्रियाएं कर कर करके लोग वाग इतना परेशान करेंगे, और जबकि हम लोग बिल्कुल, मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे नहीं खाते, उन बच्चों को भी वो जबरदस्ती खिलाता है। संगत जी, आप लगा लीजिए कि गुरुजी महाराज, जो इंसान काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं कमाता, घर से नहीं निकलता है, और वो 100 कितने बड़े बड़े रईसों वाले रखता है, तो वो क्या होगा। संगत जी, कल संडे था और शनिवार, 2 दिन सैटरडे और संडे उसका दिमाग बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि मैंने उसको, जब मैं आटा गूंद रही थी उसमें 2 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा ना के बराबर चीनी, एक चुटकी, मतलब हल्का सा इतने आटे में डाला और उसको गर्म पानी में करा, चीनी को गर्म करी और उस आटे को लगा दिया, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी ठीक हुई। तो संगत जी, जब तक तो वो ठीक रहा, आज फिर उसने वही मीट वगैरह खाया, और संगत जी को बहुत ड्रिंक करने भी लगा। और देखिए गुरुजी महाराज उसको इतनी सद्बुद्धि दे, अभी तो मेरा भी दिमाग उसको देख देख कर बिल्कुल काबू में नहीं है इस टाइम। मैं भी गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करूं, कितना करूं, क्या करूं, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आता है कि इसको अगर तुम कुछ खर्चा मांगोगे तो ये नहीं, उस चीज़ में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दारू में और मीट में। और संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे थे कि अब तू एक शुक्राना अपने भाई की तरफ से कर। तो मैं अपने भाई की तरफ से भी एक शुक्राना करती हूँ कि मेरा भाई मेरे लिए गुंजिया वगैरह लाया, और बहुत बेचारा आया, उसको देखकर भी इसका मुंह चढ़ा ही रहा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा हम पर खूब करी, और जैसे भी हो आगे भी गुरुजी महाराज हमें संभालेंगे, किसी के बस की बात नहीं है। और गुरुजी महाराज सब संगत को अपनी ब्लेसिंग से बहुत 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 ब्लेस करना, और सबकी होली का त्योहार हंसी खुशी जाए, सब अपने घर में अच्छे स्वस्थ मस्त रहें, सब अपने बच्चों में हंसी खुशी रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहले भी इसकी बुद्धि को ठीक किया, और अब भी गुरुजी महाराज इसकी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी कल, तो इसने क्या कहा, तेरे हुआ क्या है, तेरे कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और इसने ये अपने बाहर वालों के साथ ही मस्त बैठा रहेगा, जाता रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं। गुरुजी महाराज, आप ही हमारे रक्षक हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं आने वाले समय को हल्का मत समझ, थोड़ी सावधानी जरूरी है, शुक्राना लिखो। और संगत जी, गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो मुझे ये भी कहा था, इस महीने चमत्कार देखने को तैयार हो जा, तेरे नाम की गूंज हर जगह सुनाई देगी, तेरी किस्मत का दरवाजा
खुलने वाला है। बस भरोसा रहा, गुरु मंत्र का जाप करता रहे। एक बड़ी खुशखबरी तेरी ज़िंदगी की दिशा बदलने आ रही है, देरी सिर्फ तेरे विश्वास की। और अब हार मत मान, समय पलटने वाला है। संगत जी, कल भी मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने बचाया, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे नाम का पंडितों में, जो मेरे आसपास के मंदिर हैं उसमें मेरे पड़ोसियों ने जो है उनको पंडितों को पैसे दे करके जब्त करवा रहे हैं ताकि ये रास्ते से हटे। गुरुजी महाराज मुझे बार बार संकेत देते हैं कि बेटा तेरे नाम का जप चल रहा है, तेरे नाम का तप चल रहा है, बच के रह, थोड़ा होशियार हो जा, थोड़ी तेज हो जा। संगत जी, मेरी तो आवाज़ ही बिल्कुल बदल चुकी है। इतनी बुरी तरह से ये भयानक से भयानक साजिशें रखते हैं और इनका इतना गंदा घिनौना खेल चलता है। मेरे पति अंकल तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। मुझे भरोसा है कि अगर मेरे गुरुजी महाराज जी इनको काम धंधा सब कुछ ब्लेस करेंगे और इसकी जो बुरी संगति है दारू की और ये मीट वगैरह खाने की, इसको भी गुरुजी महाराज दूर करेंगे। क्यों किसी का इतना लोग घर उजाड़ते हैं, इतने मज़े लेते हैं, क्यों किसी का नाश करते हैं? क्या इनको मिलता है? छोटे छोटे बच्चे भी तड़पते हैं, घर में लेडीज़ें भी पिटती हैं कुटती हैं और इतनी बुरी तरह से झगड़े होते हैं। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? करने वाले गुरुजी महाराज, मैं तो आपके चरणों में ही अरदास लगा सकती हूँ। अगर हम तो किसी को अपनी बातें भी बोलते हैं तो कोई हंसेगा, अगर हंसते भी हैं लोगों में, तो आपसे ही अरदास लगा सकती हूँ कि आप ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। संगत जी, 1 रुपये का तो 100 रुपये देगा तो 100 रुपये में से 10 बार तो हिसाब लेगा, कहाँ गए कहाँ गए, क्या ले आई, अरे क्या ले आई। क्या घर में तीज त्योहार पे भी इसको 1 रुपये का हिसाब चाहिए? तो सबको गालियाँ देना, कभी मायके वालों को गालियाँ देता है, कभी मेरी बहनों को, कभी भाई को। कोई इसके आई नहीं जाए नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर भी संगत जी इतना गंदा गंदा गंदे गंदे लफ्ज़ यूज करता है। और संगत जी, हद तो मुझे जब हुई, दुख तो बहुत हुआ कि मैंने इसके लिए देखिए पूरी भी बनाई, सब्जी भी बनाई थी और मेरे बस की भी नहीं था, मैं इतनी बीमार थी। इसने ला के 2 किलो की पन्नी में मीट बुक्स कढ़ाई में गरम करके खाने लगा। क्या संगत जी, साल भर के त्योहार में भी इसको मीट खाना जरूरी है? कौन सा राक्षस है ये, कौन सा कसाई है? ये तो मेरे गुरुजी ही इसको जानते हैं। संगत जी, मैं तो खुद ही बहुत थकी हुई हूँ और गुरुजी महाराज इसको सद्बुद्धि देना, हर त्योहार पे ये ऐसे ही करता है। बहुत बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ कि जो भी है मेरे पे जो करता है, मेरे परिवार पर जो करता है, उसको भी एक बार पलटवार ज़रूर करिएगा ताकि उसको भी तो पता लगे कि दूसरों की ज़िंदगी में हराम करना और अपनी ज़िंदगी आराम से जीना तो मुझ पे क्या बीत रही है, जब उस पे वो बैकफायर होगा तो उस पे क्या बीतेगी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। आंटी जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार है 1 मार्च का, सॉरी संगत जी, 2 मार्च का सत्संग है ये। मेरे गुरु जी के चरणों में मैं अर्पित कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई सत्संग में बताया है कि मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। संगत जी, मैं 26 साल से कहीं नहीं बाहर गई। मैं जहाँ रहती हूँ वो शहर छोड़ के मैंने कहीं नहीं कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन मेरे आज गुरुजी की इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है। संगत जी, मैंने कभी एयरपोर्ट तक नहीं देखा था। फ्लाइट में बैठना तो दूर की बात है, एयरपोर्ट तक नहीं देखा था। लेकिन मेरे गुरुजी का इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है कि मैं 10 मार्च को केरला घूमने जा रही हूँ और पूरे 5 डेज़ के लिए। संगत जी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी। जो मेरे गुरुजी ने आज दिखाया है मेरी लाइफ में, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
मैं क्या, मेरे बच्चों ने भी कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था संगत जी। मेरे हस्बैंड इतना रूड थे हम लोगों के साथ कि कभी कहीं घुमाने नहीं लेके जाते थे। लेकिन आज गुरुजी ने उनको इतना चेंज कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है संगत जी, कि उन्होंने खुद से अपने मन से हम लोगों का केरला का टिकट करवाया है, पूरा पैकेज बनवाया है। और हम लोग 10th मार्च को घूमने जा रहे हैं संगत जी। और कल मेरे हस्बैंड ने उसी के लिए मेरे बच्चों की और सब शॉपिंग करवाई उन्होंने, कि वहाँ जा रहे हो तो शूज़ चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना मेरे गुरुजी का। हमेशा टेलीपैथी मैसेज आता है कि अब तो अच्छे दिन देखेगी मेरी बेटी। तो सही में संगत जी, मेरे गुरुजी ने जो हाथ थामा है मेरा, और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ से आ रही हैं संगत जी। मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ जो मेरे गुरुजी मुझे दे रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब के बारे में। लेकिन अब मेरे हस्बैंड का स्वभाव इतना मेरे गुरुपा ने चेंज कर दिया है कि वो हर बात हम लोगों की मानते हैं, हम लोगों की खुशी देखते हैं, जो कि इम्पॉसिबल था संगत जी। मैं बहुत रोती थी कि अब ये मेरी लाइफ ऐसे ही जाएगी। मेरी 2 बेटियां हैं, रोते हुए ही मेरे घर से अपने घर जाएंगी। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुजी ने 360 मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ चेंज कर दी है संगत जी। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि होली आ रही है। आज भी होलिका दहन का दिन है। कई सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर कोई काली क्रिया कर रहा है, तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पति के ऊपर। और वो मैं जान रही हूँ, मेरे घर वाले ही हैं। कौन है ये मैं भी जान रही हूँ। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि उनका किया वो उन्हीं पे पलटवार मैं करूँगा, तू चिंता मत कर। और अभी मैं थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले ही सत्संग सुन रही थी। तो उन आंटी ने, सॉरी संगत जी, उन आंटी ने सुनाया कि मैं तितली रूप में दर्शन देने आवांगा। और दोपहर में ही संगत जी एक काली कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन गुरुपा ने दिए हैं। शुक्राना 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 मेरे मालका। इसी तरह से अपने चरणों में लगाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ हम मेरे पे, मेरे बच्चों पे और मेरे पति अंकल पे बनाए रखना संगत जी। संगत जी, गुरुजी कई बार सत्संग में सुना रहे थे कि तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। लेकिन आप लोग भी जानती होंगी कि एक औरत अपने आगे अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती है। मैंने उसको सत्संग सुनती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। मैंने सॉरी संगत जी, कई बार गुरुजी ने बोला भी कि तू चेकअप करा अपना, चेकअप करा अपना, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और संगत जी, आप गुरुजी की मेहर देखिए कि गुरुजी देख रहे थे कि ये अपने से तो कुछ करने वाली है नहीं। तो संगत जी, मेरा पीरियड्स का टाइम चल रहा है और मेरे पेट में अचानक इतना दर्द कि हार के मुझे सोनोग्राफी करानी पड़ी, जिसमें मुझे एक छोटा सा फाइब्रॉइड निकला है, लीवर, फैटी लीवर है, और यूट्रस का साइज़ बढ़ा हुआ है। तो संगत जी, ये मेरे गुरुजी ही जानते थे। गुरुजी जानते थे कि मैं कभी अपने मन से तो कराऊंगी नहीं। तो ये सब खेल गुरुजी ने रचा और मेरे सामने ये सब बीमारी लाई। और अब मुझे टेलीपैथी मैसेज भी आ रहा है कि तेरे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही थी, उसको मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका। बस आपका ही सहारा है। अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है गुरुपा, कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। जो नेगेटिविटी हम पे कर रहा है, जो बीमारी भेज रहा है, उसको आपने ही देखना है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं 25 साल से ऐसे लोगों से जूझ जूझ के थक गई हूँ। और जब मुझे आप मिले हैं तो मुझे कोई चिंता की बात ही नहीं है संगत जी। गुरुजी पे विश्वास कीजिए, वो आपको इतना देंगे कि आप लेते लेते थक जाओगे। सपने में भी गुरुजी, आपने सोचा नहीं होगा, वो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देंगे संगत जी, जो कि मेरे लाइफ में हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो सोच लिया था कि अब मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी। लेकिन जो 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई है गुरुजी से जुड़ने के बाद में,
मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड इतना चेंज हो जाएँगे, इतने अच्छे से हम लोगों के साथ रहेंगे, जो कि हमको देखना नहीं चाहते थे। वो अगर मेरे बच्चे वो एक रूम में हैं, तो वो दूसरे रूम में चले आते थे। लेकिन आज वही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ में बैठें, मेरी वाइफ़ मेरे साथ में बैठे, हर चीज़ अपनी आके शेयर करते हैं। मुझे पैसा देते हैं खर्चे के लिए, जो कि मैं अगर माँगती थी तो मेरे मुँह पे 500 के नोट फेंकते थे गाली दे के। आज अपने मन से बिना माँगे मुझे देते हैं। तो ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है संगत जी, और कोई नहीं कर सकता है। अब लोग चाहे जितनी काली क्रिया कर लें, मैं देख भी रही हूँ, लोगों का चेहरा देख रही हूँ, उनको हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है। लेकिन गुरुजी सत्संग भी सुनवा रहे हैं। जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने सत्संग सुना है कि तुम दोनों को देख के तेरे परिवार वाले खुश नहीं हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब सँभाल रहा हूँ, सब काली क्रिया उनकी उन्हीं पे पलट रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है संगत जी। जो मेरे गुरुजी मेरी लाइफ़ में कर रहे हैं ना, उसके आगे शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। मैं और क्या बोलूँ संगत जी, मेरी लाइफ़ में गुरुजी जब आए हैं तो मेरी लाइफ़ में बहार आ गई है, बहार आ गई है। अब ये लोगों का चेहरा देखने लायक बन रहा है, ये अब तड़प रहे हैं। मेरी सास नीचे ले जा अपनी बेटी से बात कर रही है फ़ोन पे। उनसे देखा नहीं जा रहा है, ना उनकी बेटी से देखा जा रहा है कि ये इतना कैसे चेंज हो गए हैं। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सँभालूँगा। और मुझे मालूम है अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी करेंगे ना, ऐसे लोगों को गुरुजी ही समझाएँगे और बताएँगे अपने तरीके से। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिका। मैं अपने पति के तरफ से, अपने बच्चों के तरफ से और अपने तरफ से शुक्राना करती हूँ संगत जी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना मेरे मालिका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। और आज दिन सोमवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 2 मार्च 2026। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। गुरुपा के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परसों रात को मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द कर रहा था। बृहस्पति, हाँ, गुरुवार की रात से ही। और दूसरे दिन मैंने मूव लगाया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। शनिवार को फिर गुरुपा से अरदास की थी, और गुरुपा का जल पर ये जो दिया में तेल बचता है उसको लगाया था, तो उसी से ठीक हो गया था। तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने बिना दवा के ही ठीक कर दिया। इसके लिए गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, बेटा का लैपटॉप लिया है, और उसी दिन से लैपटॉप जलने का बहुत सारा सत्संग आ रहा है। आज भी वही सत्संग सुना मैंने। तो गुरुपा जो भी है उसको भस्म कर दीजिएगा। और अभी हम लोग हाल ही में बहुत महंगा ही गुरुपा लैपटॉप दिलाए हैं। तो गुरुपा लैपटॉप की भी और बच्चे की भी आप ही को रक्षा करना है। और बेटे अंकल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना है मालिक, शुक्राना, शुक्राना। और अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना। उन सभी बेजुबान पेड़ पौधे पशु पक्षी और सभी जीव जंतुओं की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, शनिवार को क्या जो हुआ, मतलब बहुत सारा काम ऐसा है कि रुक रुक के हो रहा था, परेशान हो रही थी थोड़ा सा। और मैं मंदिर भी गई तो उस दिन उल्टा कपड़ा पहन के गई थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा। और मंदिर जाके जब देखा तो मैंने कि मैं उल्टा कपड़ा पहन के आई हूँ। तो गुरुपा आपका उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि कोई टोका नहीं और किसी की नज़र भी नहीं गई, इतने सारे लोग थे फिर भी। और गुरुपा आज पैसा फ्रॉड का भी सत्संग सुना रहे थे कि
कोई भी पेमेंट आने वाला था और उसके साथ फ्रॉड होने वाला था उसके पति अंकल के साथ। तो मुझे भी वही सत्संग आया था और 2-3 बार आया। तो ग्रुपा जो भी ऐसा कर रहा है उसको बुद्धि को सही कर दीजिएगा और हमारे जो पैसे हैं वो भी पेमेंट आने ही वाले हैं। तो ग्रुप आप ही को बचाना है, आप ही को सब कुछ देखना है, तो आप देख लीजिएगा। और अभी टोटो वाला आया था जो बता रहा था कि उसके साथ साइबर क्राइम मतलब फ्रॉड कर रहा था। उसका खाता भी खुलवाया और उसको पता भी नहीं चला और पैसा भी 50,000 आ गया और थाना भी गया था तो उसका रिपोर्ट नहीं लिखाया गया। तो ग्रुपा प्लीज़ आप देख लीजिएगा। उस टोटो वाले की भी अपना खाता कुछ नहीं है और गरीब है बेचारा। तो ग्रुपा जो भी इसको ठग रहा है उसकी बुद्धि को सही कर दीजिए, नहीं तो उसको उस मुसीबत से जल्दी निकाल दीजिएगा। क्योंकि थाना में गया था तो वहाँ भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी और उसको बार बार वो लोग पैसा निकालने के लिए भेज रहे थे करके। तो वहीं बता रहा था अभी। तो ग्रुपा जो भी है मैं उसके तरफ से भी आपसे विनती करती हूँ कि उसको भी उस मुसीबत से निकाल दीजिएगा, फंसे नहीं वो। और किचन में भी संगत जी आंटी जी बता रही थी कि कष्ट है। तो ग्रुपा का मैसेज आया हुआ है कि तुझे बार बार किचन से निकालने के लिए कहा है, तुमने निकाला नहीं है। तो मुझे नहीं पता है ग्रुपा क्या चीज़ है और अभी मैंने सत्संग सुनना शुरू भी नहीं किया है। तो जब सत्संग सुनूंगी और आप ही मेरी बुद्धि को सही कीजिएगा और जो चीज़ किचन से बाहर फेंकना है निकालना है उसको निकलाएगा। और उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और सभी को हैप्पी होली। और ग्रुप आपको भी हैप्पी होली। सभी पितर पूर्वज सभी देव देवताओं को अ, अ, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अच्छे से खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाएं और ग्रुपा सभी को हर कष्ट से मुसीबत से बचा के रखिएगा। सभी का अच्छा हो, सभी निरोगी काया सभी को ब्लेस कीजिएगा। और ग्रुपा बच्चे दोनों बाहर हैं, अलग अलग है। बेटा भी वहाँ अलग में ही है, अभी अकेले सरकारी क्वार्टर में है। तो दोनों बच्चों को आप ही संभालिएगा, आप ही देखिएगा, कोई संकट या कोई मुसीबत ना आने पाए। और एक मैसेज आया था संगत जी, उसमें आंटी जी पर तब मैसेज में था कि कोई तेरे मुंडे को होली के बहाने अपने पास बुलाएगा। तो ग्रुपा उन सभी से बेटे की भी और बेटी आंटी की भी रक्षा आप ही को करना है। आप ही रक्षा कीजिएगा, सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। आप देखिए, आप ही का घर है, आप ही घर के मुखिया मालिक है, सब कुछ आप ही को करना है। तो ग्रुपा आप ही देख लीजिए, आप ही संभालिए। और ग्रुपा जो भी मुझसे जाने अनजाने भूल चूक हुई है, पाप हुआ उसके, उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मालिश। और संगत जी अभी एक बिल्ली डेली रोज आती है और अभी भी यहीं पे मेरे साथ बैठी हुई है, गोद में बैठी हुई है। और मैं भी अभी ग्रुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ। तो ग्रुपा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मुझे नहीं पता कौन सा जीव किस रूप में आता है, तो मैं उसको अंदर आने देती हूँ, रहने भी देती हूँ थोड़ा देर। और घर में चूहे भी है तो उन सबको भी नहीं भगा पाती हूँ, तो इनको जो बिल्ली को ही बाहर निकाल देती हूँ। तो ग्रुपा आपका तहे दिल से शुक्राना और इस बिल्ली का भी शुक्राना करती हूँ जो रोज़ आती है दौड़ दौड़ के और थोड़ा कुछ खाना और पानी पी के चली जाती है। तो ग्रुपा मेरे पति को भी थोड़ा सा बुद्धि को ठीक कीजिए, कोई जीव जंतु को ना परेशान करें। और संगत जी बाहर में जो कुत्ते आते हैं, एक टाइम का खाना खाने आते हैं रात को ही, उन सबको भी सामने वाले जो पड़ोसी रहते हैं उन लोग मार मार के भगा दिए थे और एक ठोकर तो मार के पैर ही तोड़ दिए थे, एकदम सूख गई थी। तो ग्रुपा प्लीज़ सभी का बुद्धि को सही कीजिए, सही के मन में दया भाव आए और उन जीव जंतु को परेशान ना करें मालिक। और ग्रुपा आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, जो भी आप देंगे अच्छा ही देंगे और बहुत अच्छा ही आपने दिया है मालिक, उसके लिए भी शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना मालिक। शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारा रिश्ता वैसे तो गुरुजी से जन्मों जन्मों का जुड़ा हुआ है, लेकिन इस जन्म में हम 19 जनवरी 2025 में गुरुजी से अपनी दीदी और जीजाजी की वजह से जुड़ पाए। गुरुजी ने हमें उनकी वजह से जोड़ा
गुरु महाराज उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु महाराज हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना। गुरु महाराज आज भी आपने अपनी बेटी को घर का काम करने की हिम्मत दी थी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आज की ड्यूटी भी आपने करवाई, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शाम के टाइम भी हिम्मत दी काम करने के लिए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपने 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपने 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपने ओम के रूप में दर्शन, उसके लिए भी गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज सुबह भी टाइम भी आपने मुझे पूजा करने की हिम्मत दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और शाम के टाइम भी आपने पूजा करने की हिम्मत और शक्ति, इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मुझ पर और मेरे परिवार पर यूं ही कृपा बरसाए रखना। गुरु महाराज जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु महाराज पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करो। गुरु महाराज जो भी आपकी संगत में ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, गुरु महाराज सबको ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ। गुरु महाराज कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज अच्छे से नींद पूरी हुए बिना थकान होते हुए भी काम करने की हिम्मत देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ। गुरु महाराज मुझ पर इतनी ज़्यादा मारण क्रिया की गई है, फिर भी आपने मुझे हर बार की गई मारण क्रिया से बचा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज दुश्मन तो चाहते नहीं थे कि मैं जिंदा रहूं, पर मेरे गुरु आप चाहते थे, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। गुरु महाराज अपनी बेटी की हर बार जान बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ। मेरे माए के परिवार की भी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जो आपने दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझ में समझ नहीं थी, पहली बार तो मेरा वैसे मिसकैरेज हो गया और दूसरी बार पति ने दवाई खिला दी कि तू बीमार है, बीमारी बच्चा पैदा करेगी। मैं मजबूर थी गुरु महाराज, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपसे और पूरी संगत परिवार से क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। जो भी बालक या बालिका थे गुरु महाराज उन्हें मोक्ष दो, अपने चरणों में स्थान दो, उनको मुक्ति दो। गुरु महाराज वो भटके ना। और गुरु महाराज मुझ पर कृपा करो, मेरी कोई संतान नहीं है। गुरु महाराज अपनी इस बेटी की भी गोद भरो, कृपा करो। गुरु महाराज आप तो सब पर कृपा करते हैं, गुरु महाराज कृपा करो। गुरु महाराज मेरे भाई बहन मम्मी पापा मुझे सबको हेल्थ ब्लेस करो। गुरु महाराज मेरी मम्मी आंटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, पापा अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, भाई अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, बहन आंटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, पति की अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आज 2 मार्च 2026 का ये शुक्राना सत्संग है। आज मैं इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बोल पाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनकी झोलियाँ में सब खुशियों से भरना।
हर सुख दुख में साथ होने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना शुक्राना। मैं अपने कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, जाने जाने में जो गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने पुत्रों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो मुझसे गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर देना। मेरे सभी अटके काम पूरे करो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हस्बैंड बुड्ढी की ठीक की, उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते गलती है मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुपा के चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है और गुरुपा जो भी गलती हो जाए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सारा सत्संग आपने ही करवाना है गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे ना शिव रूप में दर्शन देने जा रहा हूँ। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, शिव रूप में कैसे दर्शन देंगे। पर ना संगत जी, मुझे बहुत टाइम से ना उज्जैन महाकाल के दर्शन करना थे, जो संभव ही नहीं हो पा रहे थे। कम से कम मुझे 15 से 20 साल हो गए, मैं बहुत छोटे में गई थी, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। और बाबा का बुलावा था कि तू आजा, तेरे भाग्य वहीं से खुलना है। तो संगत जी, गुरु जी की महाराज की कृपा ऐसी हुई कि मैं, मेरा दोनों भाई भाभी और हम, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे अंकल, हम लोग कार से गए। ऑब्स्टिकल्स आए रास्ते में, पर मैं समझ गई थी देर हो रही है, गुरु जी की कृपा है, उसमें कोई ना कोई संकट वो काट रहे हैं। तो संगत जी, पहला शुक्राना ये था कि हम लोग के ना वहाँ, हम लोग एक जगह हमने गन्ने का जूस पीने के लिए गाड़ी रोकी। जो मेरी भाभी, होने वाली भाभी, उनको कंटिन्यू उल्टी हो रही थी, तो शायद उन्हीं की वजह से ना हमने, मतलब गाड़ी हमारी रुकी कि चलो इनको थोड़ा जूस पिला दे। तो संगत जी, अगर वो जूस पीने हम लोग नहीं रुकते तो हम लोग जूस पी के निकले ही थे, तो देखा हमारे पहले जो गाड़ी वहाँ से निकली थी उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो उस दुर्घटना से बचाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। उसके बाद संगत जी, इतनी भीड़ होने के बाद जी उज्जैन में बाबा ने बहुत अच्छे से दर्शन कराया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना ये कि गुरुजी ने बोला था तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, शिव रूप में दर्शन दूंगा। और शंकर जी, हम जितने लोग गए थे उन सब ने पिंडी के दर्शन करे, पर किसी को भी पिंडी में ओम के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ मेरे अलावा। तो वो साक्षात गुरुपा के दर्शन थे। तो उस शुक्राने के, उस दर्शन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे महाकाल की पिंडी में ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं, मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ गुरुपा, सिर्फ आपने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। और एक बार नहीं संगत जी, मैंने 2 बार नज़र हटा के देखी कि शायद ही मेरे बहन मिनकत, पर नहीं, मुझे साक्षात ओम के दर्शन हो रहे थे पिंडी में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। काल भैरव में भी आपने काल बाबा के, भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से करवाए। बहुत भीड़ थी, उसके बाद भी जल्दी दर्शन करा दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सही सलामत घर आए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और आपने कहा था तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा, शिव रूप में मुझे दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, तो उस ट्रिप को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा सबसे पहला होली का रंग आपके लिए, और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी संगत को और गुरु जी महाराज को। बस गुरु जी महाराज का यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा होली वाले दिन का शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरे गुरु महाराज आपको भी हैप्पी होली। दिल से सारी संगत को हैप्पी होली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। कोई गलती हो जाए मुझसे बोलने में तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पिताजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपको हैप्पी होली दिल से। और गुरु जी, मैं हर उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ
जो आपने हमें दिया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। हर सुख में भी शुक्राना, हर दुख में भी शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मुश्किलों से बचाने का शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आपको तो पता है कि आपकी बेटी कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। आपसे कुछ नहीं छिपा गुरुजी, लेकिन फिर भी आपकी बेटी शुक्राना करती है कि इतनी मुश्किलें आने के बावजूद भी आपने अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो हर मुश्किल का सामना करती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। हे मेरे गुरु पिताजी, कभी हमारा हाथ साथ कभी मत छोड़ना, हर पल अपने बच्चों के साथ रहना, हर पल। गुरु पिताजी, आप हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। एक पल के लिए तो मैं टूट ही जाती हूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे गुरु पिताजी है ना। गुरु पिताजी, आपसे मिले हुए हमें 2 साल हो गए गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, इन 2 साल में आपने पता नहीं हमारे कितने छोटे बड़े कष्ट बीमारी कितने काटे हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। लेकिन गुरु पिताजी, अब भी इतनी परेशानियां आए दिन आती है कि आपकी बेटी अंदर से टूट गई है गुरु पिताजी। अब इन मुसीबतों और परेशानियों से लड़ने के लिए आपकी बेटी में हिम्मत नहीं बची है गुरु पिताजी। प्लीज़ गुरु पिताजी, अब इन मुश्किलों का अंत कर दीजिए गुरु पिताजी। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज होली का दहन है गुरु पिताजी। आज मेरे और मेरे बच्चों के सारे दुखों का अंत होलिका दहन में कर दीजिए गुरु पिताजी। आपके बच्चे बहुत मुश्किल में गिरे हुए हैं गुरु पिताजी। गुरु पिताजी, सब कुछ आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, और हमारे जो कर्म हैं वो आप जल्दी से काट दीजिए गुरु पिताजी। अब सहन नहीं होता गुरु पिताजी। आज इस होलिका दहन में मेरे बच्चे के और हमारे सारे दुख जलाकर भस्म कर दिए गुरु पिताजी। और जो हम पर नेगेटिविटी है, कराया है, जो भी कुछ भी है गुरु पिताजी, वो सब इस होलिका दहन में भस्म कर दीजिए गुरु पिताजी। और आपको करना होगा गुरु पिताजी, क्योंकि गुरु पिताजी आपकी बेटी अब थक चुकी है, टूट चुकी है, अब और बर्दाश्त नहीं होता गुरु पिताजी। आप सब देख रहे हैं गुरु पिताजी किस तरह चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है गुरु पिताजी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता बाबा जी। प्लीज़ गुरु पिताजी, संभाल ले अपनी बेटी को संभाल लो गुरु पिताजी। गुरु पिताजी, मुझे पता है आप हमारे साथ हो तभी हम बचे हुए हैं, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं गुरु पिताजी। लेकिन फिर भी आपने इन मुसीबतों से हाथ पकड़ के बाहर निकाला है बाबा जी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है, विश्वास है कि मेरे पिताजी इसी होलिका दहन में मेरे सारे दुखों का अंत करेंगे। और आने वाला मार्च का महीना मेरे लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा। गुरु पिताजी, मुझसे कुछ बोलने में कहने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना मेरे गुरु महाराज, माफ़ करना साध संगत जी, माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु पिताजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।